Hello guys, we are going to do the editorial analysis for 7th November 2025 for Indian Express. So इसमें 3 आर्टिकल्स थे जो इम्पोर्टेंट है फॉर जिनके नोट्स बनाने की ज़रूरत है फॉर मेंस एग्जाम. So first of all, there is an article about AI race and how China is winning it. Okay. Then there is an article on Sudan crisis. Uh, this is by a former diplomat, Gurjeet Singh. And although a direct question on Sudan crisis is unlikely, but there are some points in this article which can be indirectly asked about or can be quoted in the answers. Then the last article is about Bihar's growth vis-a-vis other states like Maharashtra, Gujarat, and all. In today's newspaper, there are some articles on the national song. Our national song is Vande Mataram, right? So this having completed 150 years, it was written in 1875 by Bankim Chandra Chattopadhyay in his novel Anand Math, that was based on Sannyasi rebellion, right? So this has completed 150 years. So there were multiple articles on this. It's not important from mains perspective, but you should know this. And there was one mention of a debate, on the national song about it being inclusive or it being sectarian. So some people say that Vande Mataram is sectarian, मतलब उनके हिसाब से ये किसी एक धर्म या संप्रदाय के लिए ज़्यादा फेवरेबल है, बाकियों के लिए उतना एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट. सो देर इज़ सम डिबेट अबाउट दिस, बट इस डिबेट के बारे में कोई ऐसा पॉइंट्स नहीं थे किसी भी आर्टिकल में, बस सबने एक पासिंग रेफरेंस दिया था. देयर वाज एन आर्टिकल बाय यूपी सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी, एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. और भी इस पर आर्टिकल्स हैं, बट ये डिबेट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है. मोस्टली आई डोंट थिंक यूपीएससी और एनी स्टेट पीसी इज गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन एनीवेज. So just know about this Vande Mataram national song having been completed 150 years. So let's move to our first article, that is AI race. Recently, the NVIDIA chief, NVIDIA chief, his name is Jensen Huang. Okay, the name is, I don't think, very important, but he is the NVIDIA chief. He has said that China is winning the AI race. Okay, so multiple countries like US, some European countries, and China, and gradually India and some other global south countries also are trying to develop AI, right? Obviously India is far behind these superpowers, but we are also catching up, right? We have our India AI mission, which we will discuss in detail some other day. But there is India AI mission which focuses on chips manufacturing, right? Then it is also called fabrication. Then it's about data centers. आपने सुना होगा कि DPDP एक्ट जो है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, इट सेज कि डेटा, इट टॉक्स अबाउट डेटा सोवरेनिटी, that the data of Indian citizens should stay in India. Okay, so anyways, India AI mission is also about data centers, and it also focuses on LLMs, that is large language models, to develop reliable and precise AI search engines. Okay, it also talks about applications, in education, health, and so on. So we are also trying to develop our own AI ecosystem. Okay, you can say this AI ecosystem, but US and China are far ahead of all, and the NVIDIA chief says this China is winning the race. Okay, so what does it imply? So let's see the figures in detail. First of all, globally, okay, these are the facts. Globally, total private AI investment touched $252.3 billion. Okay, $252.3 billion globally. As per, now this is important, what is the source of this data? Stanford's AI Index report
तो आप में से कई लोगों ने सुना होगा, देयर इज़ अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। सो वहाँ का एक एआई इंडेक्स रिपोर्ट है, उसके हिसाब से ग्लोबली टोटल प्राइवेट एआई इन्वेस्टमेंट जो है वो इट्स मोर देन $250 billion. ओके, आउट ऑफ दिस यूएस investments have touched $109.1 billion. Okay, it's the largest. So in terms of investments, US is the leading country. However, China, okay, China has been moving very fast. China is racing ahead in terms of, so how is it racing ahead? Even though its investments are low, but it has lower energy costs. Okay, why? Because it gives electricity subsidies to its AI manufacturers and to the entire industry, the data centers. Okay, so it gives electricity subsidy. That's why the energy costs are low. Then there are looser regulations. Okay, so for example, according to the NVIDIA chief himself, he says that in the US, the AI is under state acts. Okay, so इंडिया में भी हमारे यहाँ कुछ लॉ जो होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, तो यूएस में स्टेट एक्ट्स के अंदर आते हैं एआई. सो व्हाट ही सेज इज इट मीन्स देयर विल बी 50 डिफरेंट regulations of AI, right? So that means बहुत ज़्यादा confusion होगा, there will be governance confusion, right? इतने सारे लॉ एक ही कंट्री में AI को लेके, जबकि चाइना में इट इज़ वेरी लूज और काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है टू द AI बेस्ड इंडस्ट्रीज. ठीक है, नाउ अबाउट दिस एनर्जी कॉस्ट ऑल्सो. सो इसमें भी एक डेटा है, इफ यू कैन नोट, कि एज पर Goldman Sachs. So Goldman Sachs is a very big finance company, fintech company. So as per Goldman Sachs, due to AI revolution, data center power demand, okay, will go up by 160%, right? तो ऑलमोस्ट 1.5 गुना बढ़ने वाला है पावर डिमांड. क्यों? बिकॉज डेटा सेंटर्स, आपको तो एआई जो है वो वर्क करता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे, और दीज मॉडल्स एम्प्लॉय एक्सटेंसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा, लाइक पीटाबाइट्स ऑफ डेटा. बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए होता है इन मॉडल्स को डेवलप करने के लिए. सो ये सब डेटा कहाँ स्टोर होता है? डेटा सेंटर्स में. तो इन डेटा सेंटर्स को रन करने के लिए और इनके कंप्यूटेशन में, बोथ स्टोरेज एंड कंप्यूटेशन, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होता है. और इसीलिए चाइना जो है वो अपनी कंपनीज को इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज़ दे रहा है. ठीक है, और क्या है यहाँ पे, चाइना और क्यों आगे है? तो देयर इज अनदर रीज़न कि दिस सब्सिडीज़ ओके, दिस पावर सब्सिडीज़ ये उन्हीं कंपनीज को दी जा रही है विच यूज़ चाइनीज़ चिप्स. ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये एक टर्म आता है ऑफन इन WTO नेगोशिएशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में. डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ PLI स्कीम्स में और मेक इन इंडिया के कुछ एस्पेक्ट्स में ये कंटेंट रिक्वायरमेंट्स रखे हैं. सो ये कंडीशंस अप्लाई कर दिए हैं चाइना ने कि जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड चिप्स यूज़ करेंगे उन्हीं को ये पावर सब्सिडीज दी जाएगी. सो एक तरफ से तो ये क्या हो रहा है कि इसके इकोसिस्टम को चीप बना रहा है, दूसरी तरफ इसके चाइनीज़ चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट कर रहा है, राइट? तो ड्यूअल बेनिफिट्स हैं इसके. ठीक है, और इट लीड्स टू क्या? पहला तो हेल्प सपोर्ट्स डोमेस्टिक चिप्स इंडस्ट्री. तो जो भी फैब्रिकेशन प्लांट्स हैं, जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, दे विल बेनिफिट. और दूसरी ओर इट
reduces dependence on NVIDIA chips. So आपको पता है NVIDIA जो है दैट इज़ अ US बेस्ड कंपनी, राइट। और डोनाल्ड ट्रंप ने NVIDIA को फोर्स किया है लाइक टू नॉट अलाउ ब्लैकवेल चिप्स जो है वो NVIDIA के मोस्ट प्रीमियम चिप्स है, हाई क्वालिटी, सो दे आर नॉट अलाउ टू बी सोल्ड इन चाइना, राइट। सो यहाँ पे भी एक ट्रेड वॉर काइंड ऑफ देखने को मिलता है सेमीकंडक्टर सेक्टर में। आपको पता है कि काफ़ी टैरिफ वॉर्स भी हुए हैं सेमीकंडक्टर सेक्टर में बिटवीन US एंड चाइना इन द रिसेंट पास्ट, जिसके ऊपर अभी हाल ही में एक G2 समिट हुआ था, G2 समिट विच वी डिस्कस्ड ऑन 4 नवंबर न्यूज़पेपर नोट्स। इसके नोट्स भी हैं, यू कैन चेक आउट द टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो वहाँ पे इन्होंने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को लेकर के जो टैरिफ थी उसको थोड़ा सा भी कम किया है आपस में, बिकॉज देयर इंडस्ट्रीज वर फेसिंग सिग्निफिकेंट बॉटलनेक्स, ठीक है। सो दीज आर द रीजन्स वाई चाइना इज़ लीडिंग, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल the lower energy costs, electricity subsidies, now looser regulations which offers flexibility, right, it offers flexibility, and then the domestic content requirement on these power subsidies has multiple benefits. First of all, it supports domestic chips industry, and secondly it reduces dependence on US producers, right, it makes it immune to external shocks, ठीक है। सो दीज आर द रीजन्स। यहाँ पे कुछ डेटा है, जैसे गोल्डमैन सैक का ये डेटा है, सिमिलरली स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स रिपोर्ट का डेटा है। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट, इट कैन बी कोटेड इन द एग्जाम्स। सो इंडिया कैन ऑल्सो लर्न, we can learn from Chinese growth, right? So this was all in this article. बाकी जो इंडिया AI मिशन है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एग्ज़ाम, इसके बारे में कभी डिटेल में वी विल सी, बट नॉट टुडे, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नाउ द सेकंड आर्टिकल वी वांट टू डिस्कस इज़ अबाउट द सूडान क्राइसिस। रिसेंटली वाई इज दिस इन न्यूज़? आपको पता है ये सूडान क्राइसिस जो है, सूडान में सिविल वार काफ़ी सालों से चल रहा है, अभी कुछ काफ़ी 4-5 सालों से चल रहा है, बट रिसेंटली द हेड ऑफ रेड क्रॉस said in an interview that history was repeating itself in Sudan. What does he mean? ये history was repeating का क्या मतलब है? कि there are reports of mass killings, okay, and humanitarian crisis, specifically in the Darfur region, okay, in the Darfur region. Darfur region कहाँ पे है? Let me show you on the map. So this is Sudan और यहाँ पे है Darfur region. So this region is, like you can see, it is the region of Western Sudan. You can see on the left side description, and इसका हिस्ट्री दिया हुआ, बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सो साहेल रीजन में आता है, साहेल रीजन इफ यू नो, बिटवीन सहारा एंड दिस ट्रॉपिकल रीजन। सो जो दारफुर रीजन है वहाँ पे मास किलिंग्स की रिपोर्ट्स आई हैं, ओके, एंड इट्स नॉट न्यू, काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो थोड़ा सा सूडान क्राइसिस का हिस्ट्री में जाते हैं, इसके हिस्ट्री में जाते हैं थोड़ा सा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्लियर सूडान वाज द फर्स्ट कंट्री, not first, like Sudan was among the earliest African countries to gain independence, right? Then it participated in Bandung Conference of 1955. You know, Bandung Conference, it was related to the non-aligned movement, right? Then in 2011, okay, South Sudan broke away.
ठीक है। सो बिफोर दिस इट वाज द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, बट 2011 में साउथ सूडान टूट गया। लेट्स सी ऑन द मैप। सो यू सी यहाँ पे सूडान के नीचे यहाँ पे साउथ सूडान है, राइट। तो पहले ये पूरा एक कंट्री होता था। आई डोंट नो, यहाँ पे कोई मार्कर नहीं दिख रहा मुझे टू पॉइंट इट ऑन द मैप, बट आप देख सकते हो बिल्कुल सेंटर पे यहाँ सूडान है, उसके नीचे साउथ सूडान है। सो पहले ये कंट्री होती थी। तो 2011 यानी 2011 में ये कंट्री टूट गई थी ना। उसके बाद क्या होता है 2023 में, राइट। 2023 में आर्मी और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, ठीक है, RSF, ये एक पारामिलिट्री फोर्स है, इनके बीच में क्या हुआ, वॉर हुआ, ओके। और इट बिकेम अ सिविल वॉर। सो अभी नीचे आप इस मैप में देखो तो ये जो ब्राउन कलर का एरिया है, ओके, दिस ब्राउन शेडेड पोर्शन एंड दिस येलो शेडेड पोर्शन। तो ब्राउन वाला जो है दैट इज़ आर्मी, और जो येलो वाला है दैट इज़ द RSF। और यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट्स वाले जोन है, अल फशीर, ज़ुरूक, न्याला, देन अल उबैद, अल कुतानती एंड ऑल दीज प्लेसेस, ये जो है ना, ये सब कॉन्फ्लिक्ट वाले प्लेसेस। और ये रीजन जो है दिस इज़ द दारफुर रीजन, ओके, जो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होती है इस रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी टेम्पोरेरी कैपिटल है सूडान का दैट इज़ पोर्ट सूडान। दिस इज़ पोर्ट सूडान, दिस इज़ द टेम्पोरेरी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, जो कि रेड सी के अलॉन्ग है। इसी दिस इज़ द रेड सी, राइट। फिर ब्लू नाइल, यहाँ पे ब्लू नाइल का माउथ भी है, ब्लू नाइल रिवर है, ट्रिब्यूटरी ऑफ द नाइल, सिनार, वाइट नाइल, नाइल, ये सारे रिवर्स यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होती हैं। उसके बाद दारफुर, सदर्न दानूर, सेंट्रल दारफुर, सो वेस्टर्न दारफुर, सॉरी पढ़ेंगे, वेस्टर्न दारफुर, सदर्न दारफुर और सेंट्रल दारफुर, ईस्टर्न दारफुर, ये सारे रीजन जो हैं दे आर कंट्रोल ऑफ RSF। तो ये एरिया जो है इसमें ब्लू नाइल, वाइट नाइल रिवर्स हैं इस ब्राउन वाले पोर्शन में, ये वाली चीज़ें हैं दिस ब्राउन पोर्शन। और ये जो येलो वाला पोर्शन है इट इज़ दिस पोर्शन, राइट, वेस्टर्न दारफुर, सदर्न दारफुर, सेंट्रल दारफुर, ईस्टर्न दारफुर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्राइसिस चल रहा है दोनों के बीच में। व्हाट हैज़ हैपेंड कि यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है। ड्यू टू दिस वॉर अल्टीमेटली ह्यूमन राइट्स आर गेटिंग वायलेटेड। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? सो मोर देन 1.5 lakh people are dead. Then nearly 13 million people, 13 million का मतलब क्या होता है? 13 into 10 lakhs, या 1.3 CR। अब देख रहे हो कितना बड़ा नंबर है, राइट। 1.3 CR people, that is one third population that is lost their homes, right. And out of these 30 million, 8.8 million are internally displaced, right. सो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का, सो यू कैन टॉक अबाउट डेथ्स, यू कैन टॉक अबाउट होमलेसनेस, यू कैन टॉक अबाउट इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स, राइट. देन देयर इज सम डेटा कि देयर हैव बीन famines in Darfur region as confirmed by the famine review committee, right, which is an independent expert panel. Okay, this is what an independent expert panel. Okay, सो यहाँ पे फैमिंग्स हुआ है. सो कुछ साल पहले यूपीएससी ने पूछा था मेंस में इन द मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन GS1 मॉडर्न हिस्ट्री कि why did
Suddenly, in the British rule, number of scale and number of famines increased in British India. Okay, why? So this was question asked in UPSC. So you can see यहाँ पे भी जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन है, तो these are places where जहाँ एग्रीकल्चर ठीक से नहीं किया जा रहा है, लोगों के बीच जो प्रोड्यूस है, ग्रेन्स है, वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं सही से. सो यहाँ पे भी ड्यू टू मैन मेड रीजन्स फेमाइंस आ रही हैं. ओके, और ये रीजन वैसे भी क्लाइमेटिकली काफ़ी लो प्रोडक्टिविटी है यहाँ की इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, और ऊपर से जो कॉन्फ्लिक्ट है इट एड्स टू द प्रॉब्लम, राइट ना. और क्या इश्यूज है इसमें इन द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस? सो हमने देख लिया डेथ्स, डिस्प्लेसमेंट्स, होमलेसनेस, देन वी सॉ फेमाइंस, देन अदर थिंग इज जेंडर बेस्ड वायलेंस. Gender based violence, it is said that more than 3 million, okay, that means 30 lakhs, more than 3 million women are at risk, like at risk of mass sexual violence. Then there are forced marriages, then there is child recruitment. So child recruitment could be for prostitution or for the combat, or their vested interests of the fighting groups. So अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है किसी भी मेंस एग्जाम में कि कोई भी किसी रीजन पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे, और आपको अगर उस रीजन के बारे में नहीं भी पता कि भाई वहाँ पे क्या चल रहा है, तो इन डायमेंशंस के अलॉन्ग आप उस क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं, और यू कैन ईजिली राइट 4-5 पॉइंट्स अबाउट दैट क्वेश्चन. अगर आपको नहीं पता है तो भी, अबाउट डेथ्स, अबाउट होमलेसनेस, अबाउट डिस्प्लेसमेंट, अबाउट फेमाइंस, अबाउट जेंडर बेस्ड वायलेंस, इसको फिर आप 3 सब पॉइंट्स में तोड़ सकते हैं. सो दिस इज़ द वे आपको सोचना चाहिए मेंस एग्जाम में. ओके, सो दिस वाज अ ब्रीफ हिस्ट्री. इसके अलावा और भी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, लाइक जब ये दोनों में फ़ाइट क्यों हुई, क्योंकि देवर फाइटिंग. यहाँ पे एक मिलिट्री कूप हुआ था. ओके, मिलिट्री कूप, उसके बाद इन फाइटिंग शुरू हो गई. तो मिलिट्री कूप जो हुआ था वो इन दोनों ने मिलकर करी थी टुगेदर, बट बाद में आपस में लड़ने लगे फॉर पावर. ओके, सो इसके पहले यहाँ पे उमर अल बशीर की डिक्टेटरशिप थी. तो ये 2019 में चला गया. उसके बाद डेमोक्रेसी आई, उसके बाद फिर मिलिट्री कू हो गया. ठीक है, डेमोक्रेसी बहुत शॉर्ट लिव्ड थी, बट ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. बट हाँ, दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट जो हमने नोट्स में ऑलरेडी लिख लिए हैं. दीज मैप्स, sorry, we started from here, right? Iran crisis. So this covers our article. ठीक है, moving on to the last one about Bihar's growth, right? vis-a-vis अदर स्टेट्स. ठीक है, ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो. ठीक है, ऐसा ही कोई आर्टिकल अगर यूपी पे आता है या किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पे आता है, आई विल ऐड दैट ऑल्सो इफ़ आई फाइंड कि ये मेंस में इंपॉर्टेंट होगा. दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम बिहार पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें कुछ डेटा है जो कि बहुत वैल्यूएबल है फॉर मेंस एग्जाम. व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोथ, तो किसी स्टेट के या किसी नेशन की ग्रोथ को हम लोग कैसे नापेंगे? तो उसके लिए हमारे पास कुछ इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं. और इस स्टडी में ये जो रिसर्च किया गया है, इसमें इंडिकेटर्स क्या क्या लिए गए हैं? सबसे पहला टोटल इकोनॉमिक आउटपुट. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिकेटर्स हियर. यानी कि इसको कैसे नापते हैं टोटल इकोनॉमिक आउटपुट को? आपको पता है जीडीपी. सो स्टेट के केस में इट इज़ कॉल्ड रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में एक बार डिस्कस करते हैं. रियल का मतलब होता है बेस्ड ऑन कांस्टेंट प्राइस. सो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है वो रिमूव होता है. सो इट रिमूव्स इन्फ्लेशन इफेक्ट. ठीक है, ताकि जब हम कंपेयर करें, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 2011-12 ईयर और 2023-24 ईयर, तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया होगा ना पिछले आप कह सकते हैं 12 सालों में. तो जब हम रियल इसीलिए देख रहे हैं ताकि कंपेयर कर पाएँ दोनों को, इन्फ्लेशन को हटा के.
कि अगर महंगाई नहीं बढ़ी होती तो उसके हिसाब से इकोनॉमिक आउटपुट कितना बढ़ा है या फिर घटा है। ओके, ना जीडीपी जो होता है, ठीक है, जीडीपी नेशन के केस में जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट के केस में उसको ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, सो इसको शॉर्ट में हम लोग रियल जीएसडीपी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा इंडिकेटर जो हमने लिया है दैट इज़ पर कैपिटा इकोनॉमिक आउटपुट, पर कैपिटा इकोनॉमिक आउटपुट। सो दिस इज़ नथिंग बट ये वाला रियल जीएसडीपी, ठीक है, रियल जीएसडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ठीक है, इकोनॉमिक आउटपुट ही देख रहे हैं हम लोग, आउटपुट को हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से नापते हैं, और इसमें जब पर कैपिटल लगा दिया तो यानी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन कि हर एक आदमी के हिसाब से कितना है। ठीक है, नेक्स्ट वन हियर इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आउटपुट। ठीक है, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना हुआ है उस स्टेट में। ठीक है, और इसको हम लोग नापेंगे कैसे, रियल नेट स्टेट वैल्यू एडेड। ठीक है, तो जब हम लोग सेक्टर यहाँ पे देखिए किसी पर्टिकुलर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो हम लोग उसको जीवीए में नापते हैं, राइट, ग्रॉस वैल्यू एडेड, कि उस सेक्टर ने कितना वैल्यू ऐड किया। जब ग्रॉस वैल्यू एडेड में से हम लोग डिप्रिसिएशन वगैरह हटा देते हैं तो हम लोग को मिलता है नेट वैल्यू एडेड। ठीक है, डिप्रिसिएशन का मतलब हुआ कि जो हमारा कैपिटल था, जो मशीनरी था, ठीक है, उनका एक साल के अंदर जितना भी उनके प्राइस में डिक्रीज़ हुआ होगा उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। तो जब उसको हटा देते हैं तो नेट वैल्यू एडेड करके एक टर्म निकलता है, और यहाँ पे हम लोग रियल ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इन्फ्लेशन को हटा दे रहे हैं, राइट, ताकि एग्जैक्ट पता चले कि आखिर कितना आउटपुट में कितना डिफरेंस है। ठीक है, सो यहाँ पे स्टेट का दे रहे हैं तो स्टेट हो गया, नेट मतलब डिप्रिसिएशन हमने हटा दिया। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको कंसेप्चुअली पता होने चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया, नहीं तो इसके ऊपर इफ़ यू वांट, अगर आपको समझना है ये सब चीज़ें, ग्रॉस वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, जीडीपी, ये सब चीज़ें, सो आई विल हैव टू मेक अ फुल वीडियो ऑन इट, अराउंड आधे घंटे लगेंगे उसको समझने में अच्छे से विद एग्जाम्पल्स। तो इफ़ यू वांट दैट यू कैन राइट इन द कमेंट्स, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। ठीक है, सो फॉर नाउ ये तीन इंडिकेटर्स हैं। फर्स्ट वन इज टोटल इकोनॉमिक आउटपुट, जो हम लोग रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी रियल जीएसडीपी के थ्रू नापेंगे। सेकंड इज पर कैपिटा इकोनॉमिक आउटपुट, जो कि नथिंग बट जो स्टेट का रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय पॉल्यूशन। और थर्ड वन इज वी आर सीइंग हाउ मच इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज हैपेंड, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो आउटपुट है वो कितना था, और आउटपुट को हम नाप रहे हैं किस तरह से, नेट वैल्यू एडेड के टर्म्स में, रियल नेट वैल्यू एडेड। ठीक है, सो लेट्स सी ना, ये जो स्टडी है इसने बिहार को कंपेयर किया है वर्सेस कुछ स्टेट्स लाइक पंजाब, महाराष्ट्र, राइट, वेस्ट बंगाल, यूपी, गुजरात। ठीक है, इन स्टेट्स के अगेंस्ट कंपेयर किया है, और केरला। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉस्परस स्टेट्स, राइट, लाइक पंजाब, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियलाइज्ड है, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला इज़ वेरी हाई in terms of human HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, आपको पता होगा रिसेंटली केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू एलिमिनेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, केरला ने एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी जो एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है ना, अति गरीबी कह सकते हैं, अति दरिद्रता को एलिमिनेट कर दिया है, ज़ीरो हो गई एक्सट्रीम पॉवर्टी केरला में। दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। तो इन स्टेट के अगेंस्ट बिहार के ग्रोथ को हम नापेंगे एंड विल सी कि सच में ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो बिहार को लेकर के जो एक कंसेप्शन बना हुआ है वो दो तरह का है। कुछ लोग कहते हैं, कंसेप्शन या व्यू पॉइंट्स कह लीजिए। ठीक है, सो पहला व्यू पॉइंट ये है कि बिहार जो है वो एक बास्केट केस है, बास्केट केस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बास्केट केस का मतलब होता है गॉन केस काइंड ऑफ, है ना, कि वो बिल्कुल ही इट्स मतलब ये बियॉन्ड रिकवरी है ना, इसको ठीक किया ही नहीं जा सकता, इतनी ख़राब हालत है। और दूसरा व्यू ये है कि जो बिहार का इमेज है डज नॉट डू जस्टिस टू इट्स रिसेंट इकोनॉमिक रिसर्जेंस। तो कुछ लोग तो ये मानते हैं कि बिहार तो है वो बिल्कुल गॉन केस है, बास्केट केस है, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, रिकवरी नहीं हो सकता, इट इज़ बियॉन्ड रिकवरी। बट कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, रिसेंट
टाइम्स में इकोनॉमिक रिसर्जेंस हुआ है बिहार का, बिहार में उत्थान हुआ है, बट बिहार का जो एक लॉन्ग परसिस्टेंट इमेज है वो इसके रिसेंट इकोनॉमिक रिसर्जन के साथ जस्टिस नहीं करता है ना। इमेज के कारण क्या हो रहा है, इसको लोग नज़रअंदाज कर दे रहे हैं, ठीक है। सो इसको हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है इन दोनों आर्गूमेंट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल इकोनॉमिक आउटपुट की, जो हमारे 3 इंडिकेटर्स थे। टोटल इकोनॉमिक आउटपुट को देखते हैं। सो यहाँ पे बिहार का रियल GSDP जो था वो था 2011 में कितना था, it was rupees 2.47 lakh crore, and in 2023-24 it became rupees 4.64 lakh crore, ठीक है। so you can see it almost 1.88 times ग्रोथ हुआ है ना, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। बट व्हेन वी सी अदर स्टेट्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले अगर इंडिया का हम नेशनल एवरेज देखें, ठीक है, इंडिया GDP, रियल GDP, राइट, 2011-12 में इट वाज अराउंड रुपीज़ 52.4 लाख करोड़, और 2023-24 में इट वाज अराउंड रुपीज़ 176.5 लाख करोड़। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है दैट इज़ ऑलमोस्ट 3.4 टाइम्स का ग्रोथ हुआ है। तो जो नेशनल एवरेज है उससे बिहार जो है वो पीछे रह गया, ठीक है। सो ये आपको इकोनॉमी में खास करके BPSC के लिए अगर कंपेयर करना हो नेशनल नंबर्स और बिहार के नंबर्स, तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। सो किसी और स्टेट के अगेंस्ट कंपेयर करने से बेटर अगर नेशनल एवरेज है हमारे पास, तो ये काफ़ी है और किसी स्टेट के देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इतना काफ़ी है, ठीक है। सो टोटल इकोनॉमिक आउटपुट में हम देख रहे हैं कि बिहार में ग्रोथ तो हुआ है, बट जितने पेस से इंडिया ने ग्रो किया है नेशनल एवरेज जो है उससे कम है। मतलब बिहार इज़ वन ऑफ द स्लोअर ग्रोइंग स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ टोटल GDP, टोटल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल GSDP के हिसाब से ये थोड़ा स्लो है, ठीक है। सेकंड है पर कैपिटा इकोनॉमिक आउटपुट, ठीक है, यानी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे देखा जा रहा है, अगर हम यहाँ पे केरला के अगेंस्ट कंपैरिजन दिया हुआ है, तो बिहार का अगर देखें पर कैपिटा, ठीक है, वो क्या है, 2011-12 में इट वाज रुपीज़ 21,750, ठीक है, और 2023-24 में इट वाज 32,174। सो लगभग इसको हम लोग इनकम के टर्म्स में भी देख सकते हैं और कंजम्पशन के टर्म्स में भी देख सकते हैं और वैल्यू एडेड के टर्म्स में भी देख सकते हैं। तो इनकम टर्म्स में अगर समझें इसको, तो ऑलमोस्ट इतनी इनकम है हर आदमी की ऑन एन एवरेज बिहार में। तो 11-12 में थी, 23-24 में इट वाज दिस मच 32,174, ठीक है। अब अगर आप केरला को देखते हैं, ठीक है, केरला को देखते हैं, 2011-12 में इट वाज 4.5 टाइम्स ऑफ बिहार, ठीक है। बिहार के मुकाबले एक बिहार का आदमी है, उसके मुकाबले मान लो ये बिहार का आदमी है और ये मान लो केरला का आदमी है, तो ही वॉज 4.5 टाइम्स ही वॉज अर्निंग, इसकी इनकम 4.5 गुना ज़्यादा थी बिहार से 2011-12 में, और 2023-24 में इट बिकेम 5.03 टाइम्स ऑफ बिहार, ठीक है। तो यू कैन सी जो इनकम गैप है, पर कैपिटा इनकम गैप है, कि यानी बिहार का एक आदमी है और केरला का एक आदमी है, उनके बीच में इनकम का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है ना। सो द गैप इज़ राइजिंग, ठीक है। तो हालांकि बिहार में अगर आप आइसोलेशन में देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स बढ़ गया है ना, अराउंड 1.5 टाइम्स। बट जब कंपेयर करते हैं बाकी स्टेट से, सो इट्स नॉट वेरी इंप्रेसिव, क्योंकि केरला के हिसाब से कंपेयर करो तो ये गैप बढ़ ही गया है, यानी अदर स्टेट्स ने ज़्यादा तरक्की करी है। पर इसमें एक कैच है, इसमें कैच क्या है, मतलब इसमें एक चीज़ ध्यान देने के लिए के लायक है कि जो पर कैपिटा इनकम है या पर कैपिटा आउटपुट है, इट इज़ टोटल रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP, रियल GSDP डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन। तो अगर जरूरी नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक आउटपुट बढ़े, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई हो तो भी पर कैपिटा आउटपुट जो है वो कम दिखने लगता है। सो इस पीरियड में बिहार का पॉपुलेशन जो है वो 18.2% इंक्रीज़ हुआ है,
जबकि केरला का मात्र 6.2% इंक्रीज़ हुआ है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने के कारण ये पर कैपिटा इनकम में डिफरेंस जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि बिहार का इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, हो सकता है कि पॉपुलेशन में ही प्रॉब्लम हो। पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया, जैसा आप देख रहे हैं 3 गुना ज़्यादा बढ़ा है केरला के मुकाबले, तो उसके कारण भी इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर तीसरा इंडिकेटर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो इसको हम नापते हैं रियल नेट स्टेट वैल्यू एडेड, जैसा पहले हमने डिस्कस किया था इसके टर्म्स में। ठीक है, तो बिहार में दिस वैल्यू इन 2011-12 वॉज रुपीज़ 12,681 करोड़ और 2023-24 में ये हो गया 31,110 CR। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ये बढ़ गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट। ठीक है, और इस सेक्टर में ऐसा लगता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र को ले लें, ठीक है, तो वो 2011-12 में उसका जो रियल NSVA था, दिस वैल्यू वॉज 16.3 टाइम्स ऑफ बिहार, मतलब जितना बिहार का था उसका 16 गुना था। और 2023-24 में ये वैल्यू हो गई ओनली 10.3 टाइम्स ऑफ बिहार। ठीक है, यानी तो जो गैप है, गैप इज़ डिक्रीजिंग, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि बिहार का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ज़्यादा तरक्की कर रहा है। ठीक है, पर इसमें एक कैच और है, क्या है कि ज़रूरी नहीं कि बिहार का ही इकोनॉमी राइज कर रहा है, महाराष्ट्र का खुद का इकोनॉमी जो है, इसका जो वैल्यू एडेड है, लाइक रियल नेट स्टेट वैल्यू एडेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो 2017-18 में रुपीज़ 3.28 लाख करोड़ था, जो कि 2023-24 में डिक्रीज़ होके 3.21 लाख करोड़ हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि बिहार ही ग्रो किया हो, तो महाराष्ट्र ज़्यादा डिक्लाइन कर गया हो, है ना। सो कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि इन आइसोलेशन, मतलब अगर हम कंक्लूजन देखें यहाँ पे, तो इन आइसोलेशन अगर हम देखते हैं, बिहार को अकेले में देखते हैं, तो ऐसा लगता है बिहार सीम्स टू बी रजिस्टरिंग हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स, है ना। ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स। और रीज़न क्या है, पहला पॉसिबली कि इसका खुद का लो बेस इफेक्ट। ठीक है, एक वन ऑफ द रीजंस क्या हो सकता है, लो बेस इफेक्ट, मतलब पहले से ही इकोनॉमी इतना पीछे है कि थोड़ा सा भी अगर वो राइज करता है तो मल्टीपल्स में ज़्यादा दिखता है ना। जैसे आप देखे होंगे एग्जांपल में पोस्ट कोविड में क्या हुआ था, पोस्ट कोविड में इंडिया का इकोनॉमी इतना श्रिंक कर गया था, इंडिया GDP श्रैंक, वो श्रिंक कर गया था। तो उसके 1 साल बाद राइज थोड़ा सा ही हुआ, पर वो श्रिंक किया हुआ GDP के मुकाबले दिखा गया तो काफ़ी 10% से ज़्यादा, 16% से ज़्यादा आई थिंक ग्रोथ रेट दिख गया था। तो दिस इज़ कॉल्ड लो बेस इफेक्ट, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि अदर स्टेट्स डिक्लाइन हो सकते हैं, उसके कारण ये इसका ग्रोथ रेट ज़्यादा दिख सकता है ना। सो दैट्स वाई वी नीड टू डेटा मस्ट हैव अ कंपैरेटिव, है ना, एनालिसिस, है ना, फॉर बेटर पॉलिसी डिसीजंस। ठीक है, सो दिस वाज टुडेज आर्टिकल्स ऑन इन द न्यूज़पेपर। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक, कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आया हो इसमें, तो यू कैन राइट इन कमेंट्स, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो चाहिए, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डिस्कस सच अ वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।